कल हमने क्या किया था? ये किया था, सेल्फ एनालिसिस वाला किया था ना? आज हमें करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड एलिमेंट ऑफ बी मैनेज पर्सन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स अब अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए आपको। एक मिनट रुको, पहले उससे रिलेटेड एक वीडियो दिखाती हूँ। See the one small story from this video, then we will discuss. Jackson, Tyler, and Luke. Jackson, Tyler, and Luke were the best of friends. They were also good at sports. Tyler, Jackson, and Luke always played together. They were particularly fond of playing football. Evidently, they were the best players of the class team, and their coach too was very happy with their performance. Once, the coach announced an inter-school football competition. Everyone was excited. The coach made all the boys perform on the field to select the final team members. Tyler was announced the captain of the team, and his friends Jackson and Luke were very happy about it. Soon, the practice sessions started. The three friends and the rest of the team members worked really hard. They were confident that they will beat the other team at the competition. In fact, the trio was the hope of the entire school. The day of the competition came. The trio and the other team members gave their best. However, they didn't know that the other team too was very well prepared. Unfortunately, Tyler and his team lost the game. Everyone became utterly disappointed in them. Next day, when the boys reached the school, they had to face criticism and scorn from a lot of students. Some even called them a sham, while others predicted that none of the old boys would be seen in the next football team. This was a major blow to their confidence. They didn't know what to do next. During lunch break, the coach called all the team members. The boys feared that it was the end of their football game. Nonetheless, all the team members gathered in the gym. With a stern look, the coach said, "It is very sad and disappointing that you boys lost the match. Tomorrow, I want to see each one of you with a write-up on any one of these personalities: Henry Ford, Beethoven, Walt Disney, Charles Darwin, and Albert Einstein." The boys felt awkward but did as the coach commanded them to do. The next day, all the boys gathered with their write-ups. The coach called each one of them to read out aloud about those famous personalities. After all the boys had finished,
The coach asked them, "Now, I want you to think about these personalities and find out what is common in them." All the boys started thinking till one of them stood up and said, "All of them are famous and were very successful in their field." "Yes," said the coach, "that is one part of their life. But there is another important part that you are missing." Everyone was surprised to hear that. All the men belonged to different fields. What else could be similar in their life apart from success? Suddenly, Tyler stood up and said, "Sir, all of them had seen failure at some point in their life. Henry Ford failed and went broke 5 times before he finally succeeded." "Yes," continued Jackson, "Beethoven handled his violin awkwardly. His teachers thought he was hopeless as a composer. Similarly, Walt Disney was fired by a newspaper editor for lack of ideas. But later, after many failures, he went on to build Disneyland." "Absolutely right," continued Luke. "Charles Darwin gave up his medical career and was taught by his father as a child with low intellect. Likewise, Albert Einstein started speaking and writing very late. He was called mentally slow by his teachers." The coach smiled at the 3 boys and patted their backs. "You are right, my boys," he said. "All the great people have faced disappointment and failure at some point or the other in their life. But those failures didn't stop them. They bounced back with even more energy and vigor. They worked hard on their weak points and emerged successful. Even discouraging words couldn't stop them." All the boys were happy to hear this. The coach then announced that there was going to another inter-school match after a few months. This cheered up all the boys. They discussed the reasons of their failure in the previous match and started working hard on their skills. The next match resulted in a draw. This didn't discourage the boys at all. Again, they worked on their skills and got prepared for a third match. Indeed, they succeeded the third time. The boys had learned to learn from their mistakes and bounce back. देखा अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या समझ में आया इसको देख के? कोई बता सकता है? Anyone want to share the experience about the story? What is the moral of the story? Ma'am, we should learn from our mistakes. Yeah. Whatever you are doing in your life, आपको जरूरी नहीं फर्स्ट टाइम सक्सेस मिलेगी। जैसे वो अपना फुटबॉल मैच उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन हार गए, लेकिन हार मानने से वो क्या डिस्करेज हो गए थे, क्योंकि वो दूसरे स्कूल से हार गए तो वो डिस्करेज हो गए। तो उसके कोच ने क्या समझाया कि जो भी फेमस पर्सनैलिटीज है, जो सक्सेसफुल है, जिनका आज नाम है इतना, वो फर्स्ट टाइम में जो है सक्सेसफुल नहीं हुए थे।
वो सक्सेसफुल हुए थे, बहुत सारी मेहनत करने, बार बार उन्हें फेलियर मिला तब जाके वो सक्सेस हुए, लेकिन उन्होंने अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा। So like that famous personality who faced failure many times, but after all they succeed because of their confidence about themselves. तो उन्होंने बॉयज को मोटिवेट किया, तो बॉयज को भी अपने अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस आया। जो लास्ट मैच वो हार गए थे, उन्होंने वो बैठ के समझा कि क्यों हारे, क्या टैक्टिस अपनानी चाहिए कि अगली बार जीतते हैं, क्या रीजन था फेलियर का, वो फाइंड आउट किया, उसके ऊपर वर्क किया और नेक्स्ट मैच में वो जीत गए। तो क्यों जीत गए और ये फेमस पर्सनालिटीज क्यों लास्ट में सक्सीड हुई? बिकॉज दे आर हैविंग कॉन्फिडेंस इनसाइड देम अबाउट देमसेल्फ। तो ट्रस्टिंग योरसेल्फ, द एबिलिटी टू ट्रस्टिंग योरसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। So that self confidence must be there in all the persons. Like as a student you must have confidence. जरूरी नहीं कि आज तक जिस सब्जेक्ट में आप कम मार्क्स लेके आए हो, वहां आगे आप उस सब्जेक्ट में चैंपियन भी हो सकते हो, अगर आप फाइंड आउट करें कि क्या प्रॉब्लम है आपकी, उस पर वर्क करें। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ओन्स एबिलिटी। अपनी एबिलिटी को पहचानो, उस पर काम करो। If you are an intelligent, hardworking, and talented person but lack confidence and avoid taking initiative, then it may be difficult for others to recognize your talent. अगर आप एक अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आपके क्लास में फर्स्ट भी आते हैं, आप इतने इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आपसे बोला जाए कि आपको असेंबली में आज कुछ बोलना है या एक प्रेजेंटेशन लेनी है, तो आप उसमें डरते हैं। कोई भी इस तरह के नए काम में आपको डर लगता है, आप नहीं कर पाते हैं, इनिशिएटिव नहीं ले पाते, अपनी तरफ से नहीं कर पाते, तो मतलब आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो लोग आपके इस इंटेलिजेंसी को कैसे पहचानेंगे? तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आपको मुझे ये नहीं आता है तो मैं सीख के करूंगा, प्रैक्टिस करके कर लूंगा या कर लूंगी, एंड देन यू विल बी सक्सीड। तो फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। यही इस स्टोरी में बताया गया है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। वन इज द एग्जाम्पल ऑफ अ बॉय हुज नेम इज नीरज। नीरज हैड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। ही देयरफॉर अवॉइडेड टॉकिंग टू हिज क्लासमेट्स। He believed that he can learn English by joining English speaking classes, and in few days he was able to speak English fluently. नीरज जो था उसका कोई दूसरे स्कूल से ट्रांसफर हुआ था, इंग्लिश मीडियम स्कूल से, तो उसको इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम थी। समझ में तो आता था, लेकिन स्पीकिंग जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं हो, आप स्पीकिंग में हेजिटेशन करते हैं। तो उसको भी था कि मैं वो अपने क्लासमेट से बात ही नहीं करता था, इस डर से कि इंग्लिश में बात करूंगा कहीं गलत हो गया तो बच्चे जो है मेरे पर हंसेंगे। तो लेकिन उसने अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं खोया, उसने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू किया। आफ्टर द स्कूल वो स्पीकिंग क्लास में जाता था, वहां से सीखा, घर में प्रैक्टिस की, पेरेंट्स के साथ, अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ इंग्लिश में बोलने की, घर में भाई बहनों के साथ प्रैक्टिस की, और अपने ऊपर उसको बिलीव था कि मैं सीख लूंगा, तो उसने सीख लिया। फिर वो इंग्लिश फ्लुएंटली बात करने लग गया अपने क्लासमेट से। तो इफ यू डोंट हैव स्किल्स, आपको वो चीज नहीं पता है, नहीं करना आ रहा है, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो आप उस पर एफर्ट करके आप कर लेंगे। वही एक गर्ल शालिनी का एग्जाम है, जो कि she was preparing for her final board exam. She feared that she will not get good marks in English because of her poor memory. This made her nervous before the exam, and she actually got poor marks in the exam. उसको भी क्या डर रहता था कि उसकी मेमोरी अच्छी नहीं थी, तो उसने सोचा मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन उसको अपने आप पर विश्वास नहीं था, उसने पहले ही हार मान ली कि मेरे नहीं आएंगे, मेरी अच्छी नहीं है मेमोरी, पुअर मेमोरी है। तो उसने कुछ एफर्ट ही नहीं किया, जैसे नीरज ने एफर्ट किया, एक्स्ट्रा एफर्ट किया, कोर्स ज्वाइन किया, उसने कुछ भी नहीं किया, पहले ही हार मान ली। तो हार मान ली तो वो बहुत नर्वस हो गई और वो एक्चुअल में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई। तो इन योर लाइफ आप किसके तरह बनना चाहेंगे, नीरज की तरह या शालिनी की तरह? हु इंस्पायर्ड यू? बोलो, विच एटीट्यूड इज गुड, नीरज एटीट्यूड और शालिनी? आवाज आ रही है कि नहीं?
Are you listening me? Yes, ma'am. Give answer. किसका एटीट्यूड सही लगा आपको, नीरज का या शालिनी का? मैम नीरज का। मैम नीरज का। नीरज का लगा ना कि आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो अपने ऊपर से विश्वास मत खो, उसको अचीव करने की कोशिश करो, अपने ऊपर विश्वास रखे, नर्वस होके शालिनी की तरह बैठना नहीं है, नीरज की तरह हार्ड वर्क करना है, बिलीव करना है अपने आप पे। अब सेल्फ कॉन्फिडेंट अगर आप नहीं हैं और बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना है? सेल्फ बिलीव करना है। जैसे कि स्टोरी में मैंने बताया उसमें कि कुछ फेमस पर्सनालिटीज थी, तो यहाँ पर भी एक फेमस पर्सनालिटी थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल दे रखा है। आपको पता है थॉमस एडिसन ने एक लाइट बल्ब इन्वेंशन किया था लाइट बल्ब का। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसने फर्स्ट टाइम नहीं, जब उसने सोचा कि मुझे बल्ब का इन्वेंशन करना, उसने बल्ब बनाया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं बना। उसने ट्राई किया, एक बल्ब बनाया लेकिन वो नहीं जल पाया। दोबारा उसने फाइंड आउट किया कि क्या गलती रह गई, दोबारा बनाया फिर भी वो नहीं बना। थर्ड टाइम फिर उसको इम्प्रूव किया, फिर बनाया, फिर भी नहीं बना। 1000 टाइम उसने प्रैक्टिस किया, 1000 टाइम उसको फेलियर मिला, तब जाके एक सक्सेसफुल बल्ब बन पाया। लेकिन 1000 टाइम किसी को फेलियर मिलने के बाद इंसान जो है वो होप खो देता है कि लगता है मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसने अपने ऊपर से बिलीव नहीं खोया और उसने फाइनली बना दिया। क्यों? बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट इन साइड कि नहीं, मैं इन गलतियों से सीखूंगा, फेलियर से कुछ ना कुछ लर्न करूंगा और एक दिन जरूर बना दूंगा। सो लाइक दैट, इतनी फेमस पर्सनालिटी जो आज इतनी फेमस है वो भी इतने सक्सेसफुल इतने फेलियर के बाद हुए हैं। तो हमको एक दो बार फेलियर मिल जाता है तो हमें डिस्करेज नहीं होना है, बिलीव रखना है लाइफ में हर सिचुएशन में अपने ऊपर। दूसरा है हार्ड वर्क होना जरूरी है आपको अपने। आप ये मान के बैठ जाएंगे कि मुझे विश्वास है मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आप पढ़ाई नहीं करें तो नहीं चलेगा। विश्वास तो होना ही चाहिए, साथ में हार्ड वर्क भी करना है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है दीपा कर्माकर का, जो कि फ्लैट फुट थी, उसको बहुत बड़ा जिम्नास्ट बनना था। 6 ईयर की एज से उसको पता चल गया था उसके कुछ फिजिकल इनएबिलिटी थी जो फ्लैट फुट होने की वजह से वो नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस पर हार्ड वर्क किया, जो भी रिक्वायर्ड उसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस वगैरह की, और आज वो जो है वो इंडियन फीमेल जिम्नास्ट है। ओलंपिक्स में उसको गोल्ड मेडल मिला है। So like that you can also do hard work. You must have believe inside yourself. You must have positive attitude. आपको लाइफ में पॉजिटिव रहना है। लाइफ में हमेशा जो है वो अच्छा टाइम नहीं चलता है, हार्ड टाइम भी आता है, एडवर्स कंडीशन आती है, हैप्पी मूड्स भी आते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो आपको हमेशा आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए लाइफ की तरफ? पॉजिटिव, कि हर समय आपको पॉजिटिव रहना है, हर चीज का पॉजिटिव साइड देखना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, जैसे कि अभी जो मैंने आपको दिखाया उसमें वीडियो में, उसमें उस कोच ने यही सिखाया कि आपको हार नहीं माननी है। आपने मैच हार गए तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव साइड देखो कि हमें इससे क्या लर्निंग मिली, कि हमें और भी अपनी टैक्टिस को अच्छा बनाना है, गेम्स के स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। तो उन्होंने चेंज किया और उसका पॉजिटिव, उस फेलियर से एक लर्निंग सीखी, उसको अप्लाई किया और अगली बार वो जीत गए। तो इसी तरह से आपको भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, कमिटमेंट होना चाहिए। अगर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, आप कोई भी न्यू न्यू वर्क स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने आप से कमिटमेंट होना चाहिए। जैसे एज अ स्टूडेंट आप अपने आप से कमिट करेंगे कि मुझे 9th में 90 अबाउट परसेंटेज लाना है, तो उस कमिटमेंट की वजह से आप डेडिकेटेड रहेंगे। अपने आप से नहीं, अपने पेरेंट्स से आप कमिटमेंट करें कि हम आपका नाम रोशन करेंगे, आपको 9th में और 10th बोर्ड में आपको 90 अबाउ परसेंटेज लाके दिखाएंगे। तो ये कमिटमेंट आपको मोटिवेट करता है। जैसे महात्मा गांधी थे, उन्होंने देश की जनता को कमिट कर रखा था कि वो हमें आजाद करवा देंगे। उस कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमेशा मोटिवेट होते रहे और उन्होंने बहुत सारा कहा, बहुत लड़ाई की और एक दिन उन्होंने देश को आजाद करा ही दिया। तो like that, like Mahatma Gandhi, you must be committed towards your studies, toward yourself, toward your parents, towards your teachers.
जो आपको आप पर प्राउड फील करें। So these four qualities you must have to become a self-confident person: self-belief, hard work, positive attitude, and commitment. सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी आपको एडॉप्ट करनी चाहिए? पहला, लाइफ में सक्सेस मिलती है तो उसको सेलिब्रेट करो, और फेलियर मिलता है तो उसको लर्न करो। अगर आप जीत गए हैं तो उसको सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ। नहीं जीते हैं, फेल हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, उस फेलियर को की क्या वजह थी फाइंड आउट करें और उसको इम्प्रूव करें। सेकंड, आपका लाइफ में गोल होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इससे सेट अप योर गोल कि मुझे ये करना है। जैसे PT1 में आज आपका रिजल्ट है, पता है ना? PT1 में अगर आपके मार्क्स अच्छे या नहीं आए हैं तो PT2 में, या अच्छे भी आए हैं, तो आपका नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए? पीरियोडिक 2 में आपको और अच्छा मार्क्स लाना है, 10th क्लास में और अच्छे मार्क्स लाने, 9th में। रिजल्ट कब आएगा? आपकी वेबसाइट पे आएगा, जैसे हमें एक्सक्यूज मी मैम। लास्ट ईयर वेबसाइट पे आया था ना, वेबसाइट पे वही आपके पोर्टल पे आप जो यस डाले। मैम, लेकिन कब आएगा? ये टाइमिंग तो मुझे नहीं पता, पर आई थिंक कब 4 o'clock, आएगा? 4 o'clock के बाद देखना शायद आ जाए। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बच्चों ने ही बताया अभी 7th के। ओके, टुडे? तो मैम 4 आज के बजे 4 बजे की कल के? वो तो बच्चे आज का ही बता रहे थे, आज 4 बजे। ओके, सो जो भी रिजल्ट हो आपका, उससे आपको क्या करना है? उससे बेटर रिजल्ट लाना है नेक्स्ट टाइम। कहने का मतलब ये है कि गोल सेटिंग होनी चाहिए। और थर्ड, आपको हमेशा हैप्पी रहना है हर सिचुएशन में। अगर आप उस एग्जाम्पल की तरह, उस वीडियो की तरह मैच हार गए हैं, तो आप जो विनिंग टीम है उनको जाके एनकरेज करें, विनिंग टीम के साथ सेलिब्रेट करें, यूनिक मुंह लटका के बैठ जाए। आपको हैप्पी रहना है, नेक्स्ट टाइम ज्यादा एफर्ट करना है और ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने हैं। जैसे आप अभी आपका रिजल्ट आता है और आपकी आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसके ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो यूं नहीं कि आप आपके थोड़े कम है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट ना करें, हैप्पी रहें। उसको, अपने फ्रेंड को कंग्रेचुलेट करें और उससे पूछे कि उसकी क्या टेक्निक है पढ़ाई करने की, और उससे आप कुछ सीखें और अगली बार आप भी अप्लाई करें। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो पर्सन हैप्पी रहता है हर सिचुएशन में, उससे लोग बातचीत करना पसंद भी करते हैं, उसकी कंपनी लोग अप्रिशिएट करते हैं। और जो हमेशा रोंदू सी शक्ल बना के रहता है, तो उससे लोग बात करना पसंद ही नहीं करते, पास में बैठना पसंद ही नहीं करते। तो इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ you must be positive inside and must be happy in all the conditions. Learn from the mistakes and improve yourself, but be happy in all the conditions. So these are the steps to be confident, to build your confidence inside you. किन किन बातों की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस डिक्रीज क्यों हो जाता है? पहली बात तो इसलिए डिक्रीज हो जाता है कि हम कोई भी काम हमें दिया जाता है तो हम पहले ही अब हताश हो जाते हैं, हमसे नहीं होगा, पहले ही सोचते वी कांट डू इट, आई कांट डू इट, आई कांट परफॉर्म good in exam, I can't in my life I can't score good marks in math। अगर आप पहले से ही हार मान लिए हो तो आप अंदर से डिस्करेज रहोगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता ही जाएगा। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, अगर आप एफर्ट करेंगे, अपने आप पर विश्वास रखेंगे। सो बी कॉन्फिडेंट, डोंट थिंक आई कैन नॉट डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दूसरा, व्हेन वी कीप थिंकिंग अवर पास्ट मिस्टेक, पास्ट में आपने कोई मिस्टेक करी है तो आप उसी को लेके पूरा फ्यूचर में रोते ही रहेंगे, बजाय उस मिस्टेक से। कौन बोला? बजाय उस मिस्टेक से कुछ लर्न करने की, अगर हम उस मिस्टेक के बारे में सोच के बुरा फील करते रहेंगे, जैसे कि असेंबली में फर्स्ट टाइम आपने कुछ बोला और आप अच्छे से नहीं बोल पाए बिकॉज यू वर नर्वस, तो उसको सोच सोच के आप इंसल्ट फील करते रहेंगे,
रोते रहेंगे और दोबारा कभी नहीं बोलेंगे दिस इज नॉट गुड। आप उस पर वर्क करें, कॉन्फिडेंस लाए, पेरेंट्स के सामने, भाई बहनों के सामने, दोस्तों के सामने, क्लास के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करें, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दूसरे बार आप सक्सेसफुली बोल पाएंगे। बजाय इसके कि आप उस मिस्टेक को याद करके बुरा फील करते रहें, आप उस मिस्टेक से लर्निंग लें, इम्प्रूव करें, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो गिरता ही जाएगा। अगर आपने ये एक्सपेक्ट कर लिया है, एनी इफ यू आर डूइंग एनी वर्क एंड यू एक्सपेक्ट दैट आपको सक्सेस ही मिलेगी पहले अटेम्प्ट में ही, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। क्योंकि आपने देखा एग्जाम्पल में, पहले अटेम्प्ट में सक्सेस तो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिली। हो सकता है पहली बार फेल हो जाए, दूसरी बार फेलियर मिले, लेकिन तीसरी चौथी बार कहीं भी तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये ना एक्सपेक्ट करें अपने आप से कि पहली बार में ही आप कर लेंगे। टाइम लगता है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं मिलता। when we are surrounded by the people who have a negative attitude, आपके ऐसे दोस्त, ऐसे नेबर्स, ऐसे रिलेटिव जो कि नेगेटिव ही बोलते हैं, हमेशा आपको डिस्करेज ही करते हैं, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपकी हर बात का नेगेटिव मतलब निकालते हैं, ऐसे लोगों के पास बैठना अवॉइड करें। ये लोग आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देते हैं। आप ऐसे फ्रेंड बनाएं जो आपको मोटिवेट करे, आपके लाइक माइंडेड पीपल हो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका दोस्त है, वो हमेशा आपको ले के क्या पढ़ना पढ़ना, चल खेलते हैं, अभी भी क्या पढ़ना, ये करते हैं, वो करते हैं, कभी भी आपको पढ़ने ना दें। तो ऐसे फ्रेंड्स को ना बनाएं, ऐसे लोगों के साथ ना रहे जो आपको नेगेटिव एटीट्यूड सिखाते हैं। तो इन पॉइंट्स की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। if you think you cannot do a thing, if you always feel bad about your past mistake, if you expect from yourself that first at the first attempt you will successful, and if you're surrounded by negative people, that will decrease your confidence। तो अब इस पीडीएफ को पढ़कर आपको ये एक्टिविटी करनी है, आपको टेबल बनानी है जिसमें आपको अपनी क्वालिटीज लिखनी है। आप में क्या क्वालिटी अच्छी है, आपके गोल क्या हैं, और आपको गोल अचीव करने के लिए क्या प्लान बना रहे हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, आई हैव, इस पर्सन में एबिलिटी क्या है कि वो 100 मीटर रेस में अच्छे से दौड़ लेता है, तो इसीलिए उसने अपना गोल क्या बनाया कि वो एक नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट पर्सन बनना चाहता है। और उसको बनने के लिए खाली गोल बनाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए प्लान क्या है आपका। उस तो एक स्पोर्ट पर्सन बनने के लिए आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है, इसलिए शुरू से उसने क्या प्लान बनाया कि एक्सरसाइज, योगा करेगा, बैलेंस डाइट लेगा और रेगुलरली रनिंग की प्रैक्टिस करेगा एक कोच के अंडर में। तो आपकी क्या, आपका लाइफ में क्या गोल है, आपकी क्वालिटीज क्या है, गोल जो है उससे रिलेटेड क्वालिटी है कि नहीं आप में, और है क्वालिटी तो क्या प्लान है। इंजीनियर बनना चाहते हो तो मैथमेटिक्स पे फोकस करना है, डॉक्टर बनना चाहते हो तो साइंस पे फोकस करना है, सीए बनना चाहते हो तो अकाउंटिंग मैथमेटिक्स अच्छी आनी चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो भी सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए, सिंगर बनना चाहते हो तो आवाज की रियाज करना है, आवाज पे, सुर ताल पे, क्रिकेटर बनना चाहते हो तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो व्हाट इज योर क्वालिटी, व्हाट यू वांट टू बिकम, एंड व्हाट इज योर प्लान टू achieve your goal, that you have to write in this table। Understand the activity? समझ में आई एक्टिविटी? Yes, ma'am. तो ये पीडीएफ आज मैं सेंड करूंगी, एक्टिविटी करनी है। उसके अलावा ये एमसीक्यूज भी अपने आप करना है पीडीएफ पढ़ के। हो सकता है इसमें मल्टीपल राइट आंसर हो, ये चारों पॉइंट लिख के जो जो राइट आंसर लगे उन सब पे टिक कर देना और शॉर्ट आंसर करना है। इन जो भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ उसके जो कोई आंसर्स है, मैं जब चैप्टर फिनिश होगा तब मैं उसके आंसर शेयर करूंगी, तब आप टैली कर देना। जैसे आप ये नोटबुक में वर्क कंप्लीट कर लो, क्योंकि जल्दी ही स्कूल से आपको नोटबुक सबमिशन के लिए मैसेज आने वाला है, आपको स्कूल में आके नोटबुक सबमिट करानी है और हम चेक करेंगे और आप वापस लेके जाएंगे। ये मैसेज आने वाला है, इससे जल्दी से नोटबुक में जिसका वर्क कंप्लीट नहीं है वो कर लें। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू एट दिस पीडीएफ? एनी डाउट? No, ma'am. So I think this story and this learning motivate you
to be a good and confident student, because it is not about this subject कि आपको इस कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये पढ़ना है. दिस इज अबाउट योर लाइफ लर्निंग. अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो अपनी लाइफ में आप अच्छे स्टूडेंट, अच्छे एम्प्लॉय, अच्छे डॉटर या सन, व्हाटएवर, अच्छे भाई बहन, सब अच्छी पर्सनालिटी बनेंगे अगर आप इसको गेन करेंगे. डोंट थिंक वी हैव टू स्कोर गुड इन कंप्यूटर, दैट इज व्हाई वी हैव टू लर्न इट. इट इज द लर्निंग अबाउट योर लाइफ. अगर इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे. सो रीड इट केयरफुली. whatever you want, you have to note down in the from the PDF. You note down in the notebook and do the assignment question given below, and the activities. If you have to write in notebook, Yeah, we have to write whole PDF. you can write whole PDF or you can write the selected part which you like. क्या ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ढूंढ ढूंढ के भी लिख सकते हो और पूरा भी लिख सकते हो. इट इज अप टू यू. बट ये पढ़ने के बाद नीचे का असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है, ये करना है. ठीक है, इस PDF में से क्या नोट करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सही लग रहा है. उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, वो इज अप टू यू कि आपको इसमें से क्या क्या नोट करना है. लेकिन असाइनमेंट जो नीचे एक्टिविटी और असाइनमेंट दिया हुआ है वो जरूर करना है मेरी तरफ से. ओके, so complete your notebook work and you have to submit in the school. Ma'am, MCQs are also to be written in notebook. Yes, because these MCQs are not given in your book, whatever I am giving to you. So बुक के MCQs हम अलग से करेंगे, वो डायरेक्ट MCQs बुक में ही करेंगे, लेकिन ये जो दे रही हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो यू हैव टू डू इन द नोटबुक. ओके, okay, then good day and good luck for your result. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you, ma'am. You're welcome. Good day. Take care, all of you.